میری خواہش تھی کہ جس لڑکی سے میری شادی ہو وہ پہلے میری محبت بنے، پھر میں اسے اپنے نکاح میں لاؤں۔ یعنی کہ میرا شوق تھا کہ میری لو میرج ہو، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اتنا موقع ہی نہ دیا، اور جیسے ہی میں 21 سال کا ہوا تو میری شادی کر دی گئی۔ میرے گھر والوں نے تو جب میں 20 کا ہوا تھا تب ہی رشتے والی آنٹی کو بول دیا تھا کہ ہمارے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈے، لیکن میرے مزاج کے مطابق کوئی لڑکی مل ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن جب میں 21 کا ہوا تو ایک لڑکی دکھائی گئی جو کافی ماڈرن اور پڑھی لکھی تھی۔ خیر اس سے میرا رشتہ طے ہو گیا اور ہماری شادی کر دی گئی۔ ہمارے پورے خاندان والے نے بڑی واہ واہ کی، کہنے لگے کہ بڑی امیر اور بڑی لکھی لڑکی سے جو رشتہ جوڑا ہے۔ اس لڑکی سے میری شادی ہوئی، اس کا نام رباب تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، شادی کے کچھ دن تو وہ بہت اچھی اور خوبصورتی گزاری، لیکن نہ جانے کچھ دنوں کے بعد رباب کو کیا ہو گیا، وہ اس طرح کرنے لگی کہ میں بہت ہی کسی چینج خاندان سے ہوں، اور وہ ریلز بناتی، ویڈیوز بناتی، میرے منع کرنے کے باوجود بھی منع نہ ہوتی۔ رباب بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑیا، ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، ریل بنا رہی تھی تو امی نے اسے کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی ہی پلا دو، تو کہنے لگی کہ خدا نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ خود اٹھ کے کیوں نہیں پی لیتی، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، نہ میں یہاں نوکرانی بن کر آئی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے آج کے بعد تنگ مت کیجیے گا۔ رباب کو صرف اپنی بے حیائی پھیلانے والی ویڈیوز ہی خوش رکھتی تھی، امی کی عزت و احترام کا اس کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ تمہاری ماں ہے، میرے نہیں، ٹھیک ہے، انہیں سمجھا کے رکھو، مجھے تنگ نہ کریں۔ رباب جب گھر سے باہر جاتی تو امی اسے کہتی کہ بیٹا دوپٹہ لے کر جایا کرو، آگے سے امی سے کہتی کہ میں آپ کی طرح کسی غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، میں آج کے دور کی ماڈرن لڑکی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو۔ اب ایک دن میں کام سے واپس آیا تو رباب امی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میں رباب کے پاس آیا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور کمرے میں لے گیا، کمرے کی کنڈی لگائی اور میں نے بہت پیار اور محبت سے اسے سمجھایا کہ رباب بڑوں کا احترام کیا کرو، وہ میری ماں ہے، کچھ تو لحاظ کرو۔ لیکن رباب تھی کہ اسے کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، وہ روزانہ سب کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی اور میں روزانہ اسے پیار اور محبت سے سمجھاتا رہتا۔ ایک دن میں نے جانے سے اسے کیا خیال آیا، مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آئندہ سے خیال کروں گی، میں کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی سے بات نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر مجھے سے یہ بات کہی، مجھے اب اس سے آہستہ آہستہ محبت ہو رہی تھی۔ ہماری شادی کو اب تقریباً 3 سال پورے ہو چکے تھے اور خدا نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا، لیکن رباب کا اب رویہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ اب بھی بے ہودہ قسم کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی، حالانکہ اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ میری امی ابو تو اب اس سے بات کرنے سے بھی کتراتے تھے، اس سے ڈرتے کہ کہیں یہ ہم پر ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ رات کو میں تھکا ہارا کام سے آتا اور آ کر کھانا بھی خود بنانا پڑتا، چونکہ رباب اس وقت سو چکی ہوتی تھی۔ صبح جب میں اٹھتا تو صبح کا ناشتہ بھی خود ہی بنانا پڑتا، چونکہ رباب کو تو کسی بات کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اسے صرف ہر وقت موبائل چاہیے تھا اور ہر وقت ریل بنانی رہتی تھی۔ ایک دن شام کو میں آفس سے گھر آیا تو میں نے رباب سے کہا کہ یار آج طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، ایسا کرو مجھے چائے بنا دو اور کھانا گرم کر دو۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھ پر حکم نہ صادر کیا کرو، روزانہ جس طرح خود کرتے ہو آج بھی خود کرو، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ نہ جانے کس کے ساتھ موبائل پر بات کر رہی تھی، پہلے جب میں گھر میں آیا تو مسکرا کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا موڈ خراب کر لیا۔ اس دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے رباب پر اس دن بہت غصہ آیا اور
बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस रात हमारी बहुत लड़ाई और बहुत बहस हुई। खैर रुबाब को तो कोई बात समझ में ना आई वाली थी। मैंने खुद ही दवाई ली और सो गया। सुबह जब मैं उठा तो रुबाब बिस्तरे पर मौजूद नहीं थी और जब अलमारी देखी तो अलमारी में उसके कपड़े भी गायब थे। मजीद देखा तो मेज पर एक खत पड़ा मिला जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। एक तो तुमने और तुम्हारे खड़ूस माँ बाप ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी थी। अब मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगी। कल तक तुम्हें खुला के कागज भी मिल जाएंगे। और हाँ, मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने जा रही हूँ और वो तुम लोग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने जब खत पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रुबाब इस तरह कैसे कर सकती है। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं थी बल्कि 2 बच्चों की माँ भी थी। लेकिन ना जाने वो क्या सोच रही थी। उसने जरा भी लिहाज ना किया। वो इस कदर इस मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी कि उसे जरा ख्याल ना आया वो क्या कर रही है। अगले दिन हुआ तो मुझे खुला के कागज मिल गए और साथ एक पैगाम भी था जिस पर लिखा था कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें मुबारक हो। मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि इनमें तुम्हारा गंदा खून शामिल है। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो और ये बच्चे तुम्हें मुबारक हो। मेरा आज के बाद ना तुमसे और ना इन बच्चों से किसी से कोई वास्ता नहीं। मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरे एहसास और जज्बात क्या थे। मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रहा था। यानी माँ के किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, उनकी जिंदगी पर तो बहुत बड़ी असर पड़ेगा। और जब ये बड़े होकर मुझसे पूछेंगे कि हमारे माँ किधर है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेरे माँ बाप तो बहुत खुश हो गए थे कि चलो अच्छा है, इस मनहूस से जान छूटी। कितनी बदतमीज थी वो, लेकिन उन्हें मेरे बच्चों का ख्याल नहीं आ रहा था कि वो बगैर माँ के कैसे जिंदगी जिएंगे। वक्त गुजर रहा था। मेरे घर वाले कह रहे थे कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे और उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी और मैं बहुत नौजवान और खूबसूरत लड़का था। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी जबकि रुबाब मुझे छोड़कर गई थी। जिस दफ्तर में मैं काम करता था वहाँ एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई और किस्मत से वो उस मुलाजमत के लिए इंतखाब भी हो गई थी। यकीन करे जब मैंने उसे देखा तो वो इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की थी जैसे दुनिया से बिल्कुल न जान थी। और मैं हैरान था कि कैसे उसके माँ बाप ने इतनी मासूम लड़की को नौकरी करने के लिए भेज दिया। अगले दिन मैं मुबारकबाद देने के लिए उसके पास गया और कहा कि बहुत मुबारक हो, इतनी आसानी से ही नौकरी इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उसने हल्की सी मुस्कुराहट में मेरा शुक्रिया अदा किया। उस वक्त मैं उसकी आवाज़ सुनकर उस लम्हे के लिए खो गया क्योंकि जितनी वो हसीन थी उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा पुरसकून थी। पर मैं रोज़ाना बहाने से उसके साथ बात करने की कोशिश करता ताकि हमारी दोस्ती हो जाए और कुछ ही दिनों में हमारी गपशप मामूल के मुताबिक हो चुकी थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सच तो ये थी कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे तब ही उससे मोहब्बत हो गई थी। उसका नाम नीलम था। मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि चलो आज किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। पहले तो उसने इनकार किया लेकिन मेरे बहुत ज्यादा असरात जोर देने पर वो मान गई। जब रेस्टोरेंट गए तो वहाँ और मैं बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए थे और वो नजरें झुकाकर बैठी थी और मैं था कि दीवानों की तरह उसे बस देखे ही जा रहा था। उस दिन तो वो बिल्कुल ही हसीन लग रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, अपनी आंखें बंद करो। और जब उसने आंखें खोली तो मेरे हाथ में अंगूठी देखकर तो वो परेशान हो गई। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ
क्या तुम मेरी शरीक हयात बनोगी? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई वहां से उठकर चले गई। मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन तब तक वो वहां से चली गई थी। उस रात मैं बहुत परेशान रहा। नीलम को आखिर क्या हुआ? मैं रात भर उसे कॉल पर कॉल की, लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल ना उठाई। सुबह हुई तो मैं दफ्तर गया, देखता हूँ कि उस दिन वो दफ्तर पर भी नहीं आई और किसी को कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया। ये सब जानने के बाद मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। आखिर क्या हुआ है? तहज्जुद वो 2 दिन तक काम पर ना आई। 2 दिन के बाद जब वो काम पर आई तो मैंने शुक्र अदा किया, चलो दीदार तो नसीब हुआ। मैं उसके पास गया और कहा कि नीलिम आखिर क्या हुआ? मुझे में ऐसी क्या कमी है कि तुम मेरे साथ इस तरह का रवैया कर रही हो? तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कहने लगी, कमी आप में नहीं, कमी तो मुझ में है। मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो और लोग आपको ताने दे कि तुमने एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी की है। मैंने नीलम से पूछा कि नीलम आपको तलाक कैसे हुई? नीलम कहने लगी कि मेरा शोहर हर वक्त नशे में रहता था। रात को जब घर आता तो नशे की हालत में मुझे मारता पीटता। मैंने हर तरह उसका ज़ुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन एक रात उन्होंने नशे की हालत में मुझे तलाक दे दी। और ये सब बताते बताते वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने नीलम का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि नीलम, मुझे खुदा की कसम है, मुझे तुम्हारी तलाक से कोई एतराज़ नहीं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और हमेशा अपनी ज़िंदगी का हसीन तरीन हिस्सा बनाकर रखूंगा। आखिरकार नीलम राज़ी हो गई। नीलम को मेरे बारे में पहले ही दिन इल्म था जब हमारी दोस्ती हुई थी, इसीलिए उसे भी मुझसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन परेशानी है कि मेरी ज़िंदगी में ख़त्म होने को आती ही नहीं। जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि नीलम नाम की एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो पहले से तलाक याफ्ता है और उन्हें तलाक की सारी वजूहात भी बताई, तो ये सब सुनते ही मेरे घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगे कि वो इतनी ही अच्छी होती तो उससे तलाक क्यों होती? अगर वो इतनी ही पाक दामन है तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता। ज़रूरी इसको कोई ना कोई कमी होगी जो उसके शोहर ने उसको तलाक दी और अब वो झूठे मूठा का नाटक करने लग गई, तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। मजीद कहने लगे कि बेटा तुम देखो पहले भी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे कहने लगे कि तुम नीलम को साफ साफ इनकार कर दो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते और आज के बाद उससे कोई भी बात करने की कोशिश ना करना। लेकिन मैं नीलम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी और उसे छोड़ने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगले दिन मैं दफ्तर गया तो नीलम बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे कहने लगी कि जान, बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत परेशान था। घर वालों की बातों से मेरी परेशानी देखकर नीलम कहने लगी, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान क्यों नजर आ रहे हो? जब मैंने नीलम को बताया मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे, तो ये सुनते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से उठकर जाने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि तुम ना जाओ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा और बल्कि आज के आज ही तुमसे शादी करूंगा और कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। खुदा की कसम, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उस दिन हम ऑफिस से सीधे कोर्ट गए और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उस दिन हमारी खुशी की कोई इंतहा ना थी, क्योंकि हम दोनों को हमारी मोहब्बत मिल गई थी और हम दोनों उस दिन बेहद खुश थे। जब मैं कोर्ट मैरिज करने के बाद नीलम को घर लेकर गया और घर में जाकर बताया कि हमने शादी कर ली है, तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी कि बेटा मुझे माफ कर दो और हमें बख्श दो। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती और अगर तुमने शादी कर ही ली है तो अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही हल है, या तो ये घर छोड़ कर चले जाओ या फिर इस लड़की को छोड़ दो। मैंने कहा कि ठीक है अम्मी जान, अगर आप नहीं चाहती कि ये इस घर में रहे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा।
میں نے सामान बांधा और हम दोनों एक होटल में चले गए और वहाँ एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। मैं समझ चुका था कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और मेरा सब कुछ अब सिर्फ नीलम ही है। मैं नीलम से बेहद मोहब्बत करता था और नीलम के आने से मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे घर में भी जन्नत बन गई थी। नीलम मुझे वक्त पर खाना देती, सुबह मुझे माथे पर बोसी देकर उठाती। नीलम मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि जैसे वो उसकी सौतेले बच्चे हों, बल्कि वो तो सगी माओ से भी ज्यादा उनसे मोहब्बत करती थी। हम दोनों इकट्ठे दफ्तर जाते थे और शाम को इकट्ठे वापस आते थे। बच्चों को देखभाल के लिए एक आया रख ली थी। नीलम की मोहब्बत के साथ पता नहीं चला कि कब एक साल गुजर गया था और उसी दौरान हम दोनों ने अपनी मोहब्बत की कमाई से एक घर भी बना लिया था। हमारी शादी को आज पूरा एक साल गुजर गया था। मैंने नीलम से कहा कि चलो यार, आज बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो नीलम कहने लगी कि यार, आज मैंने आपकी फेवरेट बिरयानी बनाई है, अब वो तो ज़ाया ना करो, और बाहर वैसे भी इतना खर्चा हो जाएगा, रहने दो। मैंने मुस्कुराते हुए नीलम से कहा कि मैडम, आपका सबक अगर ख़त्म हो गया हो तो अब चल लेते हैं। और फिर हम सब मिलकर एक रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में जब जाकर बैठे तो थोड़ी देर के बाद एक वेटरा आई। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो रुबाब थी, जिसने मुझे अपने हराम इश्क के लिए छोड़ दिया था और अपने बच्चों को भी परवाह ना की थी, बल्कि ये बोल दिया था कि ये तुम्हारा गंदा खून है। जब मैंने उसे इस हालात में देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने रुबाब को कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुबाब ने मुझे देखता तो मेरे पाँव पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि खुदारा मुझे माफ कर दो, और कहने लगी जिससे मैंने मोहब्बत की उसने मेरे जिस्म का इस्तेमाल किया और फिर उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने बेच दिया। फिर उसके दोस्तों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस मिटाई और मुझे सड़क के किनारे फेंक दिया। मेरे वालिदैन ने जितनी भी मेरे नाम जायदाद की थी, ये सब कहते कहते वो चीख चीख कर रोने लगी और मुझसे माफिया मांगने लगी। मैंने उसे कहा कि रुबाब देखो, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन नीलम मेरी जिंदगी में आई थी, और मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई भी तस्वर नहीं। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर ना जाती तो मेरी जिंदगी अभी तक जहन्नम बनी होती और नीलम जैसी लड़की भी मेरी जिंदगी में ना आई होती। और ये सब कहते ही मैंने नीलम का हाथ पकड़ा और वहां से उठकर चला गया। दोस्तों, तलाक याफ्ता औरतों में कोई कमी नहीं होती। जरूरी नहीं कि अगर कोई औरत तलाक याफ्ता हो तो वो बदकिरदार है या उसमें कोई कमी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने शादी करनी है, दूसरी या तीसरी, तो खुदारा तलाक याफ्ता औरतों से शादी करें, क्योंकि ये वो औरतें होती हैं जिन्हें उनके शोहरों ने बिला वजह अपनी अना और गुस्से में छोड़ा होता है और उनका इस्तेमाल करके वो उन्हें घर से निकाल देते हैं। और अगर आपको किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत है जो तलाक याफ्ता है, तो खुदारा उससे जल्द शादी करे और उसका सहारा बने, क्योंकि उनकी जिंदगी दुखों से भरी होती है। न जाने क्यों हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरतों को एक गाली समझा जाता है और ये बात पर कही जाती है कि अगर ये इतनी ही अच्छी होती तो इसे तलाक क्यों होती। खुदारा अपनी सोच को बदलो। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए।